کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوشامدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ ناروال، ڈیرہ غازی خان اور اچ شریف میں وابڈہ کی نجکاری کے خلاف دفاتر کی تالہ بندی، ملازمین کا گلے میں زنجیریں ڈال کر احتجاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے سیالکوٹ میں دریائے توی پر پختہ پل کی تعمیر کے لیے 18.5 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی۔ خانیوال میں کتوں کی لڑائی کا دوسرا مقابلہ، پولیس اور محکمہ حیوانات نے چپ سادھ لی۔ رحیم یار خان میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ سانگھڑ اور شکارپور میں بھی ہیسکو ملازمین کی احتجاجی ریلیاں اور دھرنے۔ سکھر میں میونسپل کارپوریشن کے عارضی ملازمین کا نئی بھرتیوں کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ۔ میرپور خاص میں ڈاکٹروں نے مطالبات کے حق میں روزانہ 1 گھنٹے کی ٹوکن ہڑتال شروع کر دی۔ ٹنڈو میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش، خواتین اور بچوں کے علاوہ طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد کی شرکت۔ اور بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کا اساتذہ کے مطالبات منظور نہ کرنے کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان۔ اور سب سے پہلے پیش کی جائیں گی صوبہ پنجاب سے خبریں۔ پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال گجرانوالہ میں 400 بیڈز پر مشتمل ڈبل سٹوری سیکشن بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سول اسپتال گجرانوالہ ڈاکٹر کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ آؤٹ ڈور سیکشن کے عقب میں آئی وارڈ، سٹورز اور چائلڈ وارڈ کو مسمار کرنے کے بعد یہاں نیا ڈبل سٹوری انڈور تعمیر کیا جائے گا، جہاں نیورو سرجری، کارڈیالوجی، چائلڈ وارڈ اور آرتھوپیڈک وارڈ سمیت ہر شعبے کے ڈبل سٹوری وارڈ بنائے جائیں گے، جبکہ ہر وارڈ 60 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 2.5 ارب کی گرانٹ 1 ماہ تک مقامی انتظامیہ کے حوالے کر دی جائے گی، جس کے بعد تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسپتال انتظامیہ نے نئے تعمیر ہونے والے انڈور عمارت کے نقشہ جات اور کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہے۔ ایم ایس کے مطابق بلڈنگ کی تعمیر کا کام 1.5 سال تک مکمل ہو جائے گا۔ وابڈہ کی نجکاری کے خلاف ناروال، ظفروال، بدوملی اور قلعہ احمد آباد کے دفاتر کی مکمل تالہ بندی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین وابڈہ اور ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین گجرانوالہ ڈویژن چودھری الیاس بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وابڈہ کی نجکاری کا منصوبہ ختم نہیں کیا گیا تو وہ مجبوراً احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کے۔ This time check is brought to you by 10 انفیکشنز والے جراثیم، 1 حفاظت، ایڈوانس لائف بوائے۔ حکومت پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گیسکو کو تحلیل کر کے ہبکو کے نام سے پرائیویٹ کرنا چاہتی ہے، جو ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی وابڈہ کی نجکاری کے خلاف وابڈہ ملازمین نے گلے میں زنجیریں ڈال کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مختلف بینرز اور پلاکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت جب تک وابڈہ کی نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لیتی تب تک دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی۔ دوسری جانب ہڑتال کے باعث دور دراز سے آنے والے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاجی مظاہرے کے دوران ملازمین نے گلے میں زنجیریں بھی ڈال رکھی تھیں۔ اچ شریف میں وابڈہ کی نجکاری اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں نان ٹیکنیکل چیف ایگزیکٹو کی تعیناتی کے خلاف ملازمین نے دفتر کی تالہ بندی کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اس موقع پر مظاہرین نے مختلف پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے وابڈہ کی نجکاری سے ملازمین میں بے یقینی کی فضا پائی جاتی ہے۔ ملازمین حکومت کے اس فیصلے کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا فوری ازالہ نہ کیا گیا تو وہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے پر مجبور
मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सियालकोट में दरियाए तवी पर पुख्ता पुल की तामीर के लिए 18.5 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। सियालकोट में सैदपुर के मकाम पर इलाका बजवात के 86 देहात का सियालकोट से ज़मीनी राब्ता मुस्तकिल बहाल रखने के लिए दरियाए तवी पर 21 करोड़ रुपए की लागत से पुख्ता पुल की तामीर के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। ताहम मौजूदा दौरे हुकूमत में इस पुल का नाम तब्दील करके बेनज़ीर शहीद पुल रख दिया गया है, जिसकी वजह से पुल की तामीर का काम रोक दिया गया। लेकिन 3.5 साल बाद इस पुल की तामीर को मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 18.5 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। इस पुल की तामीर का काम मुकम्मल होने से इलाका बजवात के 86 देहात के 60,000 से ज़ायद मकीनों को फ़ायदा पहुँचेगा। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के अमीर मौलाना रशीद अहमद लुधियानी ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन में दीनी जमातें मुत्तहिद होकर सेकुलर कुव्वतों के खिलाफ मैदानी अमल में आएंगी। बहावलपुर में JUI के सीनियर नायब अमीर जमीलुर रहमान दरख्वास्ती के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म और तब्दीली की बातें करने वाले अमरीका के एजेंट हैं। मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी का कहना था कि पाकिस्तान एक नजरियाती इस्लामी मुल्क है, तहम जिस सियासी पार्टी ने मुल्क बनाया वही इस्लामी निज़ाम के नफाज में रूगिरदानी कर रही है। मौलाना जमीलुर रहमान दरख्वास्ती के कन्वीनियर किफ़ायतुल्लाह दरख्वास्ती ने कहा कि बहावलपुर में मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती की याद में इस्लाम जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी JUI की मरकजी सेक्रेटरी तलात मौलाना मोहम्मद उम्मीद खान समेत मुतादिद नामवर शख्सियात भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। रहीम प्यार खान की बात करेंगे, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक जबकि 1 डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। DPO रहीम यार खान सुहेल जफर चट्ठा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने अबूजहबी कॉलोनी नंबर 5 के एक मकान पर छापा मारा, जिसमें मकान में मौजूद 3 डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक पुलिस एहलकार भी मौके पर हलाक हो गया और 2 फरार हो गए, 1 डाकू हलाक हुआ। उधर पुलिस ने डाकुओं का ताक़ुब जारी रखा और चक 55 के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान दोबारा फायरिंग से 1 डाकू हलाक जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वाले डाकुओं में से 1 डाकू का ताल्लुक सादकाबाद से है। वाज़ेह है कि मुबैना पुलिस मुकाबले में मरने वाले डाकुओं ने चंद रोज कबल शहरी से गाड़ी और लाखों रुपए नकदी छीनी थी। शरह ख़वानगी में इजाफे के लिए नारोवाल में मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और NGOs की जानिब से एक वॉक का इनेकाद किया गया। DCO अहमद अली कम्बो की क़यादत में गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज नारोवाल से TM ऑफिस तक निकाली गई रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लैक कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर तंजीम और तालीम की अहमियत के हवाले से मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। बादशाह TM हॉल में खुशहाल पंजाब की ज़मानत, गैर रस्मी मयारी तालीम और हमारी जिम्मेदारियों के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए DCO नारोवाल अहमद अली कम्बो ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से शरह ख़वानगी में इजाफे के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशादात की रोशनी में तालीम के फ़रोग़ में अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी कौमें ही दुनिया में तरक्की करती हैं। इस मौके पर सुधार सोसाइटी की ज़िले कोऑर्डिनेटर गुलनार सईद, इंद्रजीत सिंह, एडमिन ऑफिसर लिटरेसी जावेद मंजूर, एडमिन ऑफिसर मोहम्मद अनवर खान ने भी सेमिनार से खिताब किया। सरगोधा में पंजाब पैरामेडिक्स अलायंस के ज़रिए एहतमाम सब स्ट्रक्चर की मंजूरी पर मुलाजमीन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि सर्विस स्ट्रक्चर स्केल 1 था 4 की मंजूरी हुकूमत पंजाब का बड़ा कारनामा है। वो इस पर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी हेल्थ के तहे दिल से मशकूर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत पंजाब आइंदा भी पैरामेडिक्स स्टाफ की इसी तरह सरपरस्ती जारी रखेगी। उनका यह भी कहना था कि पैरामेडिक्स स्टाफ को भी दीगर मुलाजमीन की तरह यूनिफॉर्म फराहम की जाए। एक और खबर सियालकोट से कि रेलवे ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 1 अरब रुपए से जायद मालियत की अराजी वागजार करवा ली है। ताराकैंट के कस्बा डानोवाली में पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में रेलवे हुकाम की ज़ेर निगरानी होने वाले इस ऑपरेशन में रेलवे के PWD शोबे के सैकड़ों मुलाजमीन और मजदूरों ने सियालकोट शहर से 5 किलोमीटर दूर मकबूजा जम्मू जाने वाले रेलवे लाइन पर 50 साल से जायद अरसे से नाजायज तामीर शुदा इमारतों को मिसमार कर दिया। उधर मुकामी लोगों की तरफ से बगैर नोटिस ऑपरेशन शुरू करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया।
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ریلوے حکام کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں قابضین نے نہ صرف ریلوے اراضی بلکہ ریلوے لائنز پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، تاہم اب ریلوے کی اراضی واگزار کرانے کے لیے ضلع بھر میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی پنجاب کے جنرل سیکرٹری نذیر احمد جنجوعہ نے کہا ہے کہ نیٹو کو سپلائی بحال کی گئی تو چمن سے تورخم تک تمام راستے بلاک کر دیے جائیں گے۔ گوجرانوالہ میں جماعت اسلامی کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نیٹو سپلائی بحال کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف 20 فروری کو پارلیمنٹ کے اجلاس کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کرنے اور احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے نیٹو سپلائی کی بحالی کا کام ہو رہا ہے۔ نذیر احمد جنجوعہ کا کہنا تھا کہ نیٹو سپلائی بحال کرے گی تو ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ خواب بن کر رہ جائے گا۔ چند ٹکوں کی امداد کے لیے پاکستانی قوم کو اثر نو امریکی غلامی میں دھکیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی گوجرانوالہ ڈاکٹر عبید اللہ گوہر اور نائب صدر شباب ملی صوبہ پنجاب محمد فرقان عزیز بٹ بھی موجود تھے۔ عیسیٰ خیل میں حلقہ پی پی 44 کی خالی نشست پر 25 فروری کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں 5 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ عیسیٰ خیل کے علاقے دادو خیل، چکڑالہ اور مجھ کے علاقوں پر مشتمل حلقہ پی پی 44 کی یہ نشست مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی عامر خیات روکھڑی کے انتقال کے بعد خالی ہو گئی تھی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر میاں والی نے اس نشست پر ضمنی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار عادل عبداللہ خان روکھڑی، مسلم لیگ نواز کے سردار بہادر خان، پیپلز پارٹی کے طاہر جاوید، فنکشنل لیگ کے طارق آزاد اور عارف آزاد کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے ہیں۔ خبر شامل کریں گے سرگودا سے، جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تنخواہوں میں عدم اضافے کے خلاف کلرکس بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کی کال پر تنخواہوں میں اضافے کے لیے محکمہ اریگیشن دفتر سے کچہری چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ایپکا پنجاب کے صوبائی صدر ظفر علی خان نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے گلے میں روٹیاں ڈال رکھی تھی اور ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات درج تھے۔ شرکاء نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے شدید نعرے بازی بھی کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے تناسب سے ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ میڈیکل الاؤنس بڑھانے کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس واپس اور تمام ملازمین کی اپ گریڈیشن کی جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ خانیوال میں رواں سال کتوں کی لڑائی کا دوسرا مقابلہ ہوا، تاہم پولیس اور محکمہ حیوانات نے اس بار بھی چپ ساتھ رکھی ہے۔ خانیوال کے لواحی علاقے شاہکوٹ میں حضرت بابا پیر روشن علی شاہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر 48 کتوں کے درمیان دنگل ہوا، جسے دیکھنے کے لیے پنجاب بھر سے ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ مقابلوں کے دوران کئی کتے زخمی بھی ہوئے، جبکہ اس موقع پر کھلے عام جوا بھی لگایا گیا۔ اس حوالے سے تھانہ کہنا خانیوال کی پولیس نے جب پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہیں جانتے، جبکہ محکمہ حیوانات کی جانب سے بھی اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ رواں سال ضلع خانیوال میں ہونے والا یہ دوسرا کتوں کی لڑائی کا مقابلہ ہے۔ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی کنسلٹنٹ آغا عدیل نے لاہور میں وقت نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آغا عدیل، جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا صاحب، آپ ایک طویل مدت ملک سے باہر رہے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں آج کے پاکستان کو؟ آج کا پاکستان ایک جوان پاکستان ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر ان کی آبادی کی اوسط عمر بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اب اوسط آبادی کی عمر کم ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان کی ترقی کے اندر کارآمد ثابت ہوگی۔ عدلیہ آزاد ہے، میڈیا جو ہے وہ عوام کو آگاہی اور انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ بیرون ملک پاکستان پیسہ بھجوا رہے ہیں، جو کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز پہ کام کر رہی ہے۔ کاشتکار بہت خوشحال ہو گیا ہے، کیونکہ ملک کے اندر اجناس کی جو قیمتیں ہیں وہ دگنا کر دی گئی ہیں، جس سے کاشتکاروں کی مالی حالت میں بھی بہتری ہوئی ہے۔ تو اوور آل جتنی پازیٹیو فورسز پاکستان کے اندر ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ منفی صورتحال کے مد نظر پازیٹیو صورتحال بھی کافی بہتر ہو رہی ہے دن بدن۔
आगा साहब, आप क्या समझते हैं कि आज के पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना है? इस वक्त पाकिस्तान की 65% जो आबादी है वो 30 साल से उम्र में कम है। तो अगर आप देखें तो ये रिलेटिवली बहुत जवान पाकिस्तान आपके सामने आता है, जिसको हम अपनी तरक्की के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने इस जो 65% ऑफ पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन नहीं मुहैया की। अब इस वक्त बड़ा शदीद ज़रूरत इस अमर की है, जिसको हुकूमत वक्त नज़रअंदाज कर रही है कि हम इस 65% ऑफ पाकिस्तान, जिसने अभी 40 साल हमारे साथ ज़िंदा रहना है और मज़ीद आबादी भी इस 65% की वजह से आएगी, इनको हम स्किल लेबर दें, इनको हम ऐसी तरबियत दें जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आए। आगा साहब, ये तो रही चैलेंजेस की बात। अब ये बताइए कि आप पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी नौजवान एक फ़ाइटर नौजवान हैं और उनको हमें फ़ाइटर बनाने की ज़रूरत है। हमें एक बेकारी नौजवान नहीं चाहिए। गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि इस नौजवानों को ऐसे वसीले प्रोवाइड करें जो कि ये नौजवान अपनी तरक्की के लिए, जिस्मानी तरक्की और ज़हनी तरक्की के लिए यूज़ कर सकें। 20 साल से पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक्स का मेडल हासिल नहीं किया। 10,000 ओलंपिक्स के मेडल्स के मुकाबले हुए हैं, जिनमें से हम कोई भी नहीं जीत सके। ये बाइस तशवीश अमर है कि 18 करोड़ आवाम के अंदर में एक भी ओलंपिक्स का मेडल नहीं है, और हमारे कौम के अंदर बहैसियत कौम इसकी कोई ऐसी डिबेट भी नहीं हो रही कि हम ऐसा क्यों इस हालत में पहुंच चुके हैं कि हमारा नौजवान किसी भी इंटरनेशनल नौजवान के मुकाबले करने की सलाहियत नहीं रखता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे नौजवानों की जिस्मानी और उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि हमारे नौजवान इंटरनेशनल नौजवानों का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए कि नौजवान नस्ल के लिए मुआशी मौके ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों? सबसे पहले पाकिस्तानी हुकूमत को ये समझना है वो किस किस्म की हुकूमत इस मुल्क की आवाम को देना चाहते हैं। अगर वो सारे काम खुद करना चाहते हैं तो उनको टैक्स जनरेशन 30-40% पे ले जानी पड़ेगी, जैसे यूरोप करता है। अभी अगर पाकिस्तान ने टैक्स जनरेशन कम करनी है तो वो बाकी काम प्राइवेट सेक्टर के लिए उनको छोड़ने पड़ेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपना जो साइज़ है वो कम से कम करें और पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर आए। ऐसे काम करें कि दुनिया की जो मल्टी नेशनल कंपनी हैं उनको पाकिस्तानी नौजवान बायसे मुनाफा नज़र आएँ, वो इस एरिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी मसनूआत बनाएं, ताकि हमारे नौजवानों को इसी अपने मुल्क के अंदर ऐसे रोज़गार मिलें ताकि हम बायसे फ़ख्र इस अक़वाम आलम के सामने खड़े हो सकें। आखिर में आगा साहब, आप पाकिस्तानी मुआशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज मैं वक्त चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और नवाए वक्त नज़रिया पाकिस्तान का अलमबरदार रहा है, और जितनी खिदमत नज़रिया पाकिस्तान की नवाए वक्त ने की है किसी और सहाफ़ती इदारे नहीं की। तो ज़रूरत मैं इस अमर की देखता हूँ कि इस वक्त नौजवान नज़रिया पाकिस्तान को समझें और इस मुल्क के अंदर जो मनफी पहलू दिन ब दिन सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं उनको नौजवान पॉइंट आउट करें। पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस वक्त एक ऐसी कैफियत डेवलप हो रही है कि वो उन्होंने गलत चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। दोबारा अपने गिरदोनवा में अब छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करें, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। इससे हुकूमत वक्त भी अपना किबला दुरुस्त करेगी, अपने हमारे ब्यूरोक्रेसी भी अपना किबला दुरुस्त करेंगी, और सियासतदानों को भी अपने मसले हल करने का मौका मिलेगा। यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक और न्यूज़ इन 20 सेकंड्स। वेलकम बैक। पंजाब से ही मजीद खबरें शामिल करेंगे। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोऑर्डिनेशन गुजरावाला वसीम अब्बास ने कहा है कि शहर में खेलों के फरोग के लिए 35 सरकारी जगहों पर करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। गुजरावाला में पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2012 की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 35 सरकारी जगहों पर तरक्याती कामों की तकमील के बाद शहर में जल्द ही बास्केटबॉल, ओपन जिम, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसी खेलें शुरू कराई जाएंगी। तकरीब से कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून नवाज चौहान और TMO मोहम्मद असलम कमर ने भी खिताब किया। तकरीब में फातेह और रनर अप टीमों के कप्तानों में 1000 से लेकर 8000 रुपए नकद इनाम और ट्रॉफियां भी तकसीम की गईं। इस मौके पर टाउन एडमिनिस्ट्रेटर वसीम अब्बास ने ऐलान किया कि तमाम फातेह खिलाड़ियों को टाउन की तरफ से यूनिफॉर्म किट्स भी दी जाएंगी।
डेरा गाजी खान में दायरे में होने वाली बैल रेस में परवाज नामी बैल ने 4 मिनट में 79 चक्कर लगाकर मैदान मार लिया। डेरा गाजी खान में हुई ये अनोखी रेस जिसके इलाके सररवाली में बैल रेस में 35 बैलों ने हिस्सा लिया था। इस मुकाबले में परवाज नामी बैल ने 4 मिनट में 79 चक्कर लगाकर ये रेस जीत ली। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे और जीतने वाले बैल के मालिक को इनाम भी दिया गया। इनाम में इस मालिक को मोटरसाइकिल दिया गया। इसके मुकाबले में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से बैल लाए गए थे, जबकि ये मुकाबला 20 साल से इलाके की सकाफत के तौर पर कराया जा रहा है, जिसे देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों की तादाद में लोग डेरा गाजी खान आते हैं। लाहौर की बात करें, जहां उजरत मांगने पर पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद के बाद मेहनत कश के सर के बाल और भवें मोड़ दी, जबकि पुलिस का कहना है कि नौजवान जेब तराश है। सरफराज खान रिपोर्ट कर रहे हैं। पीर महल के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद शबीर के मुताबिक थाना लोअर माल के सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन समेत चंद नामालूम पुलिस एहलकारों ने इससे सारा दिन थाने में काम करवाया और बादअज़ा उजरत मांगने पर पुलिस एहलकारों ने पहले उसका मजाक उड़ाया और फिर इसके सर के बाल और भवें मोड़ दी। पैसे भी गल है, फिर लोअर माल लै गया थाने, उत्थे मैं किसी दिन नाई सद्या, नाई सद के मेरी टेंड कराई और मेरिया मुछां मुन्नियां, मेरे भरभट्टे भी मुन दिते। वक्त न्यूज की टीम जब चौकी दाता दरबार पहुंची तो पुलिस ने अपना मौकफ देते हुए बताया कि ये नौजवान जेब तराश है, जबकि दूसरी जानिब नौजवान को लेने के लिए आने वाले मजदूरों के ठेकेदार मोहम्मद इजाज के मुताबिक मोहम्मद शबीर अरसदराज से उसके साथ मजदूरी कर रहा है। जो मजदूर यहाँ से जो मुलाजिम तब्दील हो जाते हैं ना, साल 2-2 साल वो तब्दील होकर भी यहाँ आते रहते हैं। मजदूरों से पैसे छीनना, उन्हें उठा के ले जाना, और कल थाना यक्की गेट वाले उठा के ले गए मजदूरों को तारे उठाने के लिए, रात 11 बजे तक काम करवाया, उन्हें पेमेंट नहीं की। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली लाहौर पुलिस की जानिब से मजदूरी मांगने की पादाश में सर और भवें मोड़ने का वाक़या न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि आला अफसरान की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ सरफराज खान, वक्त न्यूज़, लाहौर। पंजाब की बात खबरें होंगी बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने असातिज़ा के मुतालबात मंजूर न करने के खिलाफ तहरीक चलाने का कर दिया है ऐलान। जाफराबाद में बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने जायज़ मुतालबात के लिए हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर असातिज़ा के मसाइल हल किए जाएं, जिनमें टाइम स्केल ग्रेड 12 तक दिया जाए, अपग्रेडेशन की मंजूरी और एडहॉक टीचर्स के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां की जाएं। उनका कहना था कि भर्तियों में मेरिट का भी खास ख्याल रखा जाए और तमाम कॉलेजेस असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस भी दें। उनका ये भी कहना था कि अगर हुकूमत ने असातिज़ा के मसाइल को फौरी तौर पर हल ना किया तो वो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अब सिंध धरती से खबरें। सिंध में सबसे पहले खबर कराची से कि कराची के इलाके लियारी में हंगामा राई और फायरिंग के वाक़यात के बाद सर्च ऑपरेशन करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया है। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों गुल मोहम्मद लैन, कच्ची मोहल्ला, चील चौक, इसके साथ साथ बंगोर बाजार, दुबई चौक, बगदादी और दीगर में रेंजर्स, एफसी और पुलिस की भारी नफरी ने घर घर जाकर तलाशी ली, जबकि इस दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में गैंग वॉर के अहम मुल्जिमान भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने सर्च ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज भी किया, ताहम रेंजर्स ने शेलिंग करते हुए इन्हें मुंतशिर कर दिया। वाज़ेह रही कि यह ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और हंगामा राई के बाद किया गया है। मुल्क भर की तरह शिकारपुर में भी पेप्को की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया। डिवीजनल चेयरमैन अब्दुर्रहमान पठान की क़यादत में निकाली गई एहतजाजी रैली में वापडा मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और वापडा की निजकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अल्लाह वाला चौक पर धरना भी दिया। इस मौके पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस 1 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पेप्को की निजकारी का फैसला वापस लिया जाए। मुलाजमीन पेप्को की निजकारी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना था कि अगर पेप्को की निजकारी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे।
पाकिस्तान वापडा इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन सांगड़ डिवीजन के ज़रिए तमाम हैस्को मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में हड़ताल करते हुए एहतजाजी रैली निकाली है। वापडा ऑफिस सांगड़ से प्रेस क्लब तक निकाली जाने वाली इस रैली की क़यादत जोनल चेयरमैन शेर मोहम्मद निज़ामानी, अजमत खान और दीगर ने की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुकर्रीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके धरना भी दिया। रैली के शुरका ने खिताब करते हुए जोनल चेयरमैन शेर मोहम्मद निज़मानी ने कहा कि हुक्मरान जानबूझकर गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हेस्को कंपनी में पीडीओ और सेक्रेटरी की तकर्री किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि अगर उनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो वह एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। दादू में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। दादू में भी वापडा यूनियन की जानिब से सेफ्टी डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वेरल मेरानी और दीगर ने कहा कि सेफ्टी का सामान और हेक्सेट बेल्ट, सेफ्टी शूज़ और दीगर सामान ना होने की वजह से मुलाजमीन काम करते वक्त हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिससे कई मुलाजमीन हलाक हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजमीन की ज़िंदगी बचाने के लिए सेफ्टी का सामान देकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो किसी नाखुशगवार हादसे का शिकार होने से बच सकें। इस मौके पर वापडा हाइड्रो यूनियन के मुनीर कोरेजो और इंजीनियर तजम्मुल बेग लगाई समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया है। बात करते हैं सक्खर की। सक्खर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आर्जी मुलाजमीन ने नई भर्तियों के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एहतजाजी रैली निकाली और धरना देकर रोड ब्लॉक कर दी। इस मौके पर मुलाजमीन का कहना था कि वो 2 सालों से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तहम उन्हें अब तक तनख्वाहें अदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आर्जी मुलाजमीन को रेगुलर ना किए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में केस ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद सियासी बुनियादों पर म्यूनसिपल कमिश्नर नई भर्तियां कर रहे हैं, जो कि आर्जी मुलाजमीन के साथ सरासर जुल्म है। उन्होंने सूबाई वजीर बल्दियात और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सक्खर में सियासी बुनियादों पर की जाने वाली भर्तियों का नोटिस लेकर आर्जी मुलाजमीन को फौरन रेगुलर किया जाए। मीरपुर खास में एमकेएम की जानिब से खवातीन की पार्टी में शमूलियत के लिए रुकनियत साजी कैंप का इनेकाद किया गया। एमकेएम की जानिब से पोस्ट ऑफिस चौक पर लगाए जाने वाले मेंबर साजी कैंप में खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब कैंप में एमकेएम की खातून रहनुमा नसरीन किश्वर और इशरत बेगम भी मौजूद थीं। बाद अज़ां एमकेएम की रुकन सिंध असम्बली में आयशा आफ्ताब और नाहिद बेगम ने भी कैंप का दौरा किया। इस मौके पर एमकेएम की खवातीन रहनुमाओं का कहना था कि मीरपुर खास में एमकेएम की रुकनियत साजी मुहिम में खवातीन का जोश व खरोश देख कर खुशी हुई। शिकारपुर में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने तनख्वाहों में अदम इजाफे और रेगुलर ना करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली है। लेडी हेल्थ वर्कर्स की तरफ से सिविल अस्पताल शिकारपुर से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ के सदर एजाज और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स गुज़श्ता 15 सालों से महकमा सेहत में काम कर रही हैं, जिनको हुकूमत की जानिब से रेगुलर किया जा रहा है और ना ही तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। उनका कहना था कि सिंध में लेडी हेल्थ वर्कर्स को 3000 रुपये माहाना दिया जाता है, जबकि पंजाब में लेडी हेल्थ वर्कर्स को 6000 रुपये माहाना दिया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंध की लेडी हेल्थ वर्कर्स को रेगुलर करके उनकी तनख्वाहों में पंजाब की लेडी हेल्थ वर्कर्स के बराबर इजाफा किया जाए। उनका यह भी कहना था कि अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर होंगे। सिंध की वज़ीर सकाफत ससी पलेजो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, जिसने हमेशा अवाम की खिदमत की है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल सक्खर में कॉलम निगार और अदीब रशीद भट्टी की बरसी और किताब की तकरीब रोनवाई से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की 65 साल तारीख में मुश्किल से उनकी जमात ने 10 साल हुकूमत की है, जबकि मुल्क पर ज़्यादा अरसा फौजी जर्नलों ने हुकूमत की है। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने आवाम के माशी और समाजी हालात को बेहतर बनाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया है। ससी पलेजो ने कहा कि मोहनजो दड़ो समेत तारीखी मकामात की हैसियत को उजागर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस मौके पर सूबाई वजीर ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे के लिए 5 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान भी किया। तकरीब में सेक्रेटरी सकाफत अब्दुल अजीज़ अकीली, डायरेक्टर कल्चरल मोहम्मद अली, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है।
PMA मीरपुर खास और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने मुतालबात के हक में रोजाना 1 घंटे की टोकन हड़ताल का सिलसिला शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स ने OPD और तालुका वार्ड्स का काम मुकम्मल तौर पर बंद करके अस्पताल में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए डॉक्टर शम्सुल आरिफैन, डॉक्टर तारिक अराई और डॉक्टर अकरम सुल्तान ने कहा कि डॉक्टर्स के टाइम स्केल, प्रमोशन, तरक्कियां और तनख्वाहें भी फौरी बढ़ाई जाएं। उनका ये भी कहना था कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते रोजाना 1 घंटे की टोकन हड़ताल का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने उनके हक में फैसला दे दिया है। मुजाहिरे में PMA मीरपुर खास के सदर डॉक्टर दरिया खान, डॉक्टर मुश्ताक खान, डॉक्टर अशफाक लोधी के अलावा दीगर डॉक्टर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब खबर शामिल करेंगे टंडोला यार से, जहां 3 रोजा फूलों की नुमाइश शुरू हो गई है। शाह अब्दुल लतीफ पिटाई पार्क में लगाई गई फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर जंगलात सैयद अली नवाज शाह रिजवी ने किया। फूलों की नुमाइश के इनेकाद से टंडोला यार के शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और नुमाइश में खवातीन और बच्चों समेत तलबा और तालिबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। नुमाइश में 30 से ज़ायद फूलों की इकसाम रखी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर रफ़ीक अहमद बड़ौर, SSP गुलाम नबी और साबिक ज़िले नाज़िम फैज़ुल हक और साबिक MNA अब्दुल लतीफ़ मंगरियो समेत मुतअद्दिद अफराद ने भी आज फूलों की नुमाइश का दौरा किया है और इस इक़दाम को खुशान करार दिया है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि ऐसे तफरीही प्रोग्राम से ही सेहतमंद माशरा तश्कील पा सकता। मीरपुर खास में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए कलम छोड़ हड़ताल की। स्टेशन चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई और प्रेस क्लब पहुंचकर धरना दिया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए क्लर्क एसोसिएशन के डिविजनल सदर मोहम्मद अय्याज शोरो, ज़िले सदर अब्दुल लतीफ़ भागड़ो का कहना था कि क्लर्क्स के जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं। उनका कहना था कि क्लर्क्स को चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक टाइम स्केल दिया जाए और इसके साथ साथ 23% सन कोटा भी दिया जाए। क्लर्क फाउंडेशन के साथ साथ GP फंड और रिटायरमेंट पर बर वक्त अदायगी दी जाए। मुजाहिरीन का यह भी कहना था कि मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। दादू के नवाही गांव नबी बख्श सोलंकी के रिहायशियों की जानिब से वतन कार्ड की दूसरी किस्त की अदायगी न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। DCO ऑफिस दादू के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक नबी बख्श सोलंकी के मकीनों ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वहीद सोलंकी, वजीर सोलंकी, अल्ताफ सोलंकी और दीगर ने कहा कि वतन कार्ड की दूसरी किस्त की रकम की लिस्ट में उनका नाम निकाल कर अपने मनपसंद लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए हैं। बाद DCO दादू डॉक्टर नियाज अब्बासी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन पर अमन तौर पर मुंतशिर हो गए। मीरपुर खास बोर्ड में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें आपका के अहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए आपका के बानी सैयद हिदायत यार बुखारी ने कहा कि बहुत जल्द सुल्तानाबाद और टंडोला यार जिला को मीरपुर खास बोर्ड में जम कर दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों शहर मीरपुर खास बोर्ड के करीब हैं। उनका कहना था कि यहाँ आने का मकसद एपका एसोसिएशन के जिम्मेदारान से मिलना और उनकी जानिब से मेंबरान के लिए की जाने वाली जदोजहद की हौसला अफजाई करना है। तालीमी बोर्ड के चेयरमैन शफीक अहमद खान ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को सहूलियात फराहम की जाएँ। इस मौके पर एपका के मरकजी सदर दोस्त मोहम्मद बरोही और सूबाई सदर सैदुज़्ज़मा अल्लाह मिशवानी भी मौजूद थे। सिंध के सूबाई वजीर हलीमा आदिल शेख का कहना है कि रिलीफ के कामों में खुर्द-बुर्द करने वाले MPAs और MNAs के साथ साथ ऑफिसर्स के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाएगी। टंडोला यार में नारी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तलबा तालबात में कंप्यूटर, ड्राइविंग लाइसेंस, शॉर्ट कोर्सेज और मोबाइल रिपेयरिंग के सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर बराए रिलीफ सिंध
حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ ناری ویلفیئر ایسوسیشن ٹنڈولایار نے سماجی کاموں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ حکومت سندھ سیم نالوں کی نکاسی اور کھدائی کے لیے پیکج دے رہی ہے تاکہ ان علاقوں سے پانی کی نکاسی کو بہتر بنایا جا سکے۔ تقریب سے مسلم لیگ کاف سندھ کے نائب صدر پیر غلام دستگیر خان، بہادر شیخ، بابو وڑائچ، صدیقہ مظفر، شہناز، ڈاکٹر نسیم، نصر اللہ جیلانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا ہے۔ دادو میں بارش اور سیلاب متاثرین کے لیے آنے والے راشن کی تقسیم میں کرپشن کے انکشاف پر مسلم لیگ نون 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون ضلع دادو کے صدر حامد بھنڈو اور ضلع سیکرٹری عزیز راجپوت کے خلاف مسلم لیگ نون کے ضلعی نائب صدر سلنگی مجید، ملا بشیر چانڈیو اور دیگر کارکنان نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب دادو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ حامد بھنڈو بارش اور سیلاب متاثرین کے لیے آنے والا سامان متاثرین کو دینے کے بجائے بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غریب اور بے سر و سامان لوگوں کے لیے آنے والا راشن جس میں ٹینٹ، گرم کپڑے اور دیگر سامان موجود ہے اسے فروخت کرنے والے عہدیداران کو فوری طور پر معطل کیا جائے۔ ادھر حامد بھنڈو کا کہنا ہے کہ کچھ سازشی عناصر مخالفین کے خرچے پر خود کو مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور کارکنان گنوا کر ضلعی قیادت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ڈائریکٹر کالج ایجوکیشن حیدرآباد پروفیسر برکت علی حیدری نے کہا ہے کہ کاپی کلچر کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے طلباء، اساتذہ اور والدین کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ ایس ایم کالج ٹنڈولایار میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء میں نواد تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر تعلیم پیر مظہر الحق تعلیم کے فروغ کے لیے انتھک جدوجہد کر رہے ہیں۔ پروفیسر برکت علی حیدری نے کہا کہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بے حد ضروری ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کی جسمانی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صفدر علی بھگیو اور پرنسپل ایس ایم کالج پروفیسر چند کرر کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مستقبل کے معماروں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ بعد ازاں مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں ٹرافیاں اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ رہیے گا وقت کے ساتھ۔